गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली दो वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज की। इस थर्ड वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो हमारे टोटल कंसेप्ट थे, टू मेक अ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और थर्ड टॉपिक था आपके पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ in this video, we will explain how a linear equation can be drawn in a graph. We consider first question, x plus y that is equal to 4. Part first. First of all, we find the solution of linear equation. Now, y equal to 4 minus x. Find any 3 or 4 solutions. एट x इक्वल टू 0, x को अगर आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपके पास 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4। एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। और एट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। 4 minus 4, 0. Then solution table. X और Y. X आप 0 लेते हैं तो Y की वैल्यू आपकी 4 है। X को आपने 2 लिया है, Y की वैल्यू आपके पास 2 है। X की वैल्यू 4 है आपके पास, Y की वैल्यू 4। तो Y की वैल्यू x 4 और y 0. Now plot these point in the graph. Plot these point on the graph. Now you have 0, x 0. First of all, write the point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 or 6. We have chosen a suitable scale. You can write scale here. One small square that is equal to 1 unit. एक जो स्मॉल स्क्वायर है उसको हमने 1 यूनिट के इक्वल सपोज किया। On x-axis, on y-axis, one small square that is also 1 unit. आप यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस का स्केल है अलग अलग भी सपोज कर सकते हो, और सेम सपोज करना चाहे तो सेम सुटेबल है तो सेम भी ले सकते हो। अब आपके पास जो पॉइंट निकाला, आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, सॉल्यूशन टेबल, वहां से आप जो पॉइंट है वो प्लॉट कीजिए। आपके पास है x0 और y4 ऑन y एक्सिस। दिस वन इज x और x डैश, y एक्सिस y और y डैश, y और y डैश। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। दिस पॉइंट इज ओरिजिन। दिस पॉइंट इज ओरिजिन। नाउ प्लॉट द पॉइंट। पॉइंट प्लॉट करेंगे आप x0 और y4। दिस इज योर पॉइंट x0, y4. Now second point is x2 or y2. x2 or y2 is this point. Third point is 4 or 0. x4 or y0. Now you have plotted the point you have find out from the equation. Now join this point by scale. इन पॉइंट को आप स्केल से ज्वाइन कर सकते हो।
that is the solution of required equation. This shows the solution of required equation. Now we can solve second part also. We will do fourth part. Three equal to 2x plus y. आप एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हो. 3 माइनस 2x इक्वल टू y. y को हमने सेपरेट किया है और 2x को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लो. नाउ एट x इक्वल टू 0. अगर आप x को 0 लेते हैं तो आपके पास 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू y. 3 इक्वल टू y. y की वैल्यू आपके पास 3 है. नेक्स्ट में अगर आप x को 1 पुट करते हो एट x इक्वल टू 1 देन 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू y. 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू y और 1 इक्वल टू y. y की वैल्यू 1. टेक वन मोर सॉल्यूशन. एट x इक्वल टू 2 दैट इज 3 माइनस 2 इंटू 2 4 y माइनस 1 इक्वल टू y. देन सॉल्यूशन टेबल. सॉल्यूशन टेबल है आपके पास x that is 0, then value of y we get that is 3. At x equal to 1 value of y is that is also 1. When x is 2 y is minus 1. y is minus 1. This is the required solution of the given equation. Now plot this point on the graph. Now plotting these points, we can plot in different graph or we can also plot in the same graph. If we plot these points in the same graph, then you can see x0 or y3. y3 is this one. x0, y3. x1 or y1. x1 or y1 is this. x2 or y minus 1. Minus 1 you will take minus 1, minus 2, minus 3. x2 or y3. x2 or y minus 1. So join this point is here. Now by scale you can join this point. This line, blue line show the graph of x equal to 2y, 3 equal to 2x plus y. So this is the required graph of linear equation in two variables. I hope you will understand this. We can also solve third part also. Y equal to 3x. Then direct you can write solution table. X or y. X is 0, y is also 0. x1, y that is equal to 3. If you put x equal to 2, y is 6. x2 or y 6. You have tried to put the नेचुरल नंबर. आपका सॉल्यूशन है, अगर वो नेचुरल नंबर में आता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, तो आपका ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाता है. नाउ you have find the solution of this equation. Plot these point, plotting these point on the graph. Now see the graph of this equation.
Now here is x0 or y0. x0, y0 mean origin. Equation pass through origin. x1 or y3. x1 or y is 3, this point. x2 or y6. x2 or y6 is this one, this point. Now join this point by scale. स्केल से आप इनको ज्वाइन कीजिए. Yes student, this is required graph. This is the required graph of equation y equal to 3x. If there are two equations given in the question and find the graph and find the intersecting point, so you can find intersecting point also. In this question we have to plot the point only, but if your question is two equation is given, plot the graph like this. You can plot the graph. Now red line show the graph of first equation. Red line show the graph of first equation. This is for first equation. Blue line show the graph of this equation, or black line show the graph of third equation. I hope you will understand this concept very well, how to plot the graph by given condition, by given linear equation. Question 4th. Question is very important. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees this. Fare for first kilometer. That is rupees 8. And for the subsequent distance, it is rupees 5. Fare for subsequent distance, that is rupees 5. Means जो टैक्सी का पहले किलोमीटर का किराया है वो 8 रुपये है. नेक्स्ट किलोमीटर का किराया 5 रुपीज, फिर नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5. मीन सब्सिक्वेंट मीन जो नेक्स्ट किलोमीटर है उनका फेयर है, दैट इज 5 रुपीज. नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज x किलोमीटर. And total fare is y rupees y. Now how we can convert this into linear equations? बच्चे अब आप ये देखिए, अगर हम यहां x को दिस वन x को अगर आप 10 ले लें तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर दैट इज इक्वल टू y, टोटल फेयर दैट इज रुपीज y. और फर्स्ट किलोमीटर का क्या आपके पास 8, बाकी जो रिमेनिंग किलोमीटर है उनका 5, लेकिन टोटल किलोमीटर कितना आपके पास x में से जो फर्स्ट किलोमीटर है वो लेस कर दे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1. टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी दैट इज x किलोमीटर. और x किलोमीटर में से जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है दैट इज 8 रुपीज. तो 8 रुपीज तो आपने ऐड कर दिया है फर्स्ट किलोमीटर का. अब जो रिमेनिंग किलोमीटर है दैट आर x माइनस 1, x माइनस 1. और जो x माइनस 1 किलोमीटर है उसका फेयर क्या आपके पास रुपीज 5.
दैट इज ₹5। और आप देखिए, अगर हम यहाँ 10 किलोमीटर ले लेते हैं, एक्स की जगह हम 10 किलोमीटर ले, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 दैट इज 9। 9 क्यों होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर आप पहले ले चुके हैं जिसका फेयर ₹8 है। तो यहां से आपकी इक्वेशन आ सकती है y इक्वल टू 8 5x माइनस 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5x प्लस 3, y इक्वल टू 5x प्लस 3, और y इक्वल टू 5x कंडीशन थी आपके पास, टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, टोटल फेयर ₹y, राइट द लीनियर इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ये तो आपके पास रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ इट्स ग्राफ। जो लीनियर इक्वेशन आई है उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप यहां से सॉल्यूशन टेबल लो, सॉल्यूशन टेबल फॉर एक्स और वाई। आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। एक्स को अगर आप 0 लेते हो, वाई की वैल्यू आपके पास 3 है। एक्स को अगर 1 पुट करोगे, एक्स को 1 पुट करोगे तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस 3 8, तो 1 और 8। एक्स को अगर आप 2 लेते हो तो वाई की वैल्यू, जरूर नहीं आप प्लस ही ले, माइनस भी ले सकते हो। एक्स को अगर आप -1 ले लेते हैं या -2 लेते हैं, आप -2 लेते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x -2, 5 इंटू 2, 5 इंटू -2 दैट इज -10 प्लस 3 दैट इज -7। तो दिस पॉइंट you can plot in the graph. How we can plot these points? Now you know that the horizontal line is x-axis, that is x or x dash, vertical line that is y-axis, y or y dash, or intersecting point of this that is called origin, we have discussed in the previous question. Now plot this point x0, पॉइंट प्लॉट कीजिए। पहले पॉइंट आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7। 1, और यहां से आप वाई एक्सिस पे लोगे। पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, आगे 7, दिस वन इज 8, दिस इज 9 8 10 11 12, और आप पॉइंट 30 लेना चाहें तो दैट इज 13। आप अगर एक वैल्यू x को +2 भी लेते आप, या x को 2 पुट करते हो प्लस का 2, तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13, तो आप ये पॉइंट भी ले सकते थे। आप 3 या 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें और उनको जैसे आप इजीली लगे उसे प्लॉट कर दें। x0 और y3, x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट आपका दिस वन। x1 और y8, x1 y8 is this point, x -2 और y7, x -2 this one is -1, this is -2, और y is -7। नीचे पॉइंट प्लॉट की मार्क कीजिए इक्वल डिस्टेंस पे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ग्राफ के आपके पास पॉइंट होते हैं, दिस वन इज 7। और फोर्थ पॉइंट प्लॉट करें 2 और x2 और y13, x2 y13 इज दिस वन पॉइंट। आपके पास एक ये पॉइंट है, आप ये पॉइंट है स्केल से ज्वाइन कर दें।
पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करोगे ये देखिए, दीज आर द 4 पॉइंट वी हैव टू प्लॉटेड इन द ग्राफ। आप ग्राफ केवल 3 पॉइंट से भी प्लॉट कर सकते हैं। हम 2 की बजाय 3 पॉइंट इसलिए लेते हैं कि आपका लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आप प्लॉट करते हुए आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है तो इट मींस योर क्वेश्चन इज राइट। दैट इज द मेन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन के अंदर पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, लीनियर इक्वेशन से आपको ग्राफ प्लॉट करना था, आपने ग्राफ भी प्लॉट किया है और लीनियर इक्वेशन भी फाइंड आउट किए। ओके, वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो अ ग्राफ क्वेश्चन। Yes, student. The countries like USA and Canada, temperature measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius scale. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. F equal to 9/5C plus 32. पहले तो आपको ये कंडीशन ही लर्न होनी चाहिए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट और सेल्सियस। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो आपका सॉल्यूशन, नाउ लेट, ये गिवन कंडीशन है, आप इसको पुट ही कर लो। पुट f इक्वल टू y और c इक्वल टू x, देन योर इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 9/5c प्लस 32। Now put the suitable value of x and we get value of y। मैंने आपको पहले क्वेश्चनों में भी बताया है कि आप x की या y की ऐसी वैल्यू ले, इंटीजर ले, जो आप ग्राफ में इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो हम यहां वैल्यू ले रहे हैं एट x इक्वल टू 10। x को अगर आप 10 लेते हो तो y दैट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। यहां से आपने कैंसिल किया 2, 18 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 50। 5 to the 10, 9 to the 18, 18 plus 32 दैट इज 50। एक वैल्यू और निकालिए आप, एट x इक्वल टू -40। -40 लेंगे, y इक्वल टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32। दिस वन इज 8, तो -72 प्लस 32 दैट इज -40। अब दो सॉल्यूशन से ग्राफ प्लॉट कीजिए x और y। सॉल्यूशन टेबल दैट इज x इज 10, y 50, x दैट इज इक्वल टू -40 दैट इज y आल्सो -40। वी हैव फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ओनली 2 पॉइंट से भी। आप और पॉइंट ले सकते हो। अगर आप x को 0 पुट करो, इक्वेशन के अंदर x 0 पुट करो तो सिंपल y की वैल्यू आपकी 32 आ जाएगी। नाउ सिलेक्ट योर स्केल और पॉइंट। आप देखिए, इसमें मैंने बड़े पॉइंट लिए हैं। बड़े पॉइंट भी इसलिए लिए हैं कि आपके पास एक वैल्यू 32 है और इस पॉइंट में आप स्केल कैसे सपोज करेंगे।
जहां आप 1 2 लेते थे आप ले सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस साइड मिलेंगे -10, -20, -30 और दिस वन इज -40। यहां से ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50 और 60। नीचे भी इक्वल डिस्टेंस पे -10, -20, -30 और -40। ओके, यस। फर्स्ट पॉइंट आपके पास x10 और y50। x10 और y50 is this point, x10 और y50। Second is x minus 40 और y40, x minus 40 और y40। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, आप वो लाइन खींच रहे हो -40 से और इधर -y से। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -40 और 40 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 10 और 50। एक और पॉइंट है आपके पास x0 y32। आप 30 और 40 के बीच में 10 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करें और आपके पास 32 आ जाए। अब स्केल से आप इन पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंडीशन। आपके पास इक्वेशन थी f इक्वल टू 9/5c + 32। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर द गिवन कंडीशन। हमने पिछले 4 ग्राफ किए हैं। मुझे होप है कि सभी को ये कंसेप्ट, ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी जो पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वी विल डिस्कस। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सेकंड। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 14। हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। कितनी लाइन हो सकती है आपको वो बताना है। हाउ मेनी लाइन आर देयर एंड व्हाई। ओके, आप पहले मुझे ये बताइए कि मेरे पास एक ये पॉइंट है, इसमें से लाइन कितनी पास कर सकते हो आप। एक ये लाइन पास कर सकते हो, ये लाइन पास कर सकते हो, ये लाइन पास कर सकते हो, जो इस पॉइंट में से पास करें। यानी in a single point we can draw infinite number of lines we can draw from a single point. Now solution of this question, your question is give the equation of 2 line passing through 2 और 14। एक पॉइंट है आपके पास 2 और 14, उस 2 और 14 में से कितनी लाइन पास हो सकती है, लेकिन हमें 2 ही लाइन लिखनी है। अब अगर आप उस पॉइंट में से लाइन पास कर रहे हो तो इट मींस दैट लाइन सेटिस्फाई द गिवन पॉइंट। अगर हम सपोज कर ले आपके पास पॉइंट है, गिवन पॉइंट 2 और 14 मींस x आपके पास 2 है और y की वैल्यू 14 है। हमें एक लाइन सपोज कर ली है, लेट x and y equal to k passing through the point। हमने एक लाइन सपोज की कि जो लाइन है x + y = k वो 2 और 14 में से पास कर रही है। यस, और वो पास कर रही है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी तो आप पुट करेंगे x = 2 और y = 14। x को 2 पुट करें और y को 14, दैट इज इक्वल टू k।
तो 16 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आपके पास 16 है। अगर ये के की वैल्यू आप वापिस पुट कर दें, दिस इज 1, पुट वैल्यू ऑफ के इन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16। आप चेक करें, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, 2 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 16। इट मीन्स दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस, राइट। कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन से पास करेगा तो दैट मस्ट सेटिस्फाई द पॉइंट इक्वेशन, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस, ये हमें फर्स्ट एग्जांपल लिया। और लीजिए, लेट x माइनस वाई इक्वल टू की, ये लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू की, पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14, तो 2 माइनस 14 इक्वल टू के, माइनस 12 इक्वल टू के। के की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 12 और के की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। यहां से आप x को 2 पुट करें और y को 14, तो वैल्यू क्या आ रही है माइनस 12 और दैट इज ऑल्सो 12। इट मीन्स दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो इन दिस वे वी कैन टेक some more examples. We will take some more examples. Yes, given point that is 2 or 14, y equal to kx, y equal to kx, let y equal to kx be the line passing through 2 और 14। अब ये लाइन अगर उसको उसमें से पास करती है तो दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस 14 इक्वल टू के इंटू 2, तो 14 बाई 2 इक्वल टू के इज 7। के की वैल्यू पुट कर दें आप इसके अंदर, देन y इक्वल टू 7x, y इक्वल टू 7x, यस, y इक्वल टू 7x। नाउ इन दिस वे वी कैन फाइंड दैट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। वैसे भी आपने छोटी क्लासों में 6, 7 में पढ़ा है कि एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास कर सकती है, तो एक पॉइंट में से आपकी इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। तो आपका सॉल्यूशन है हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। सो यू कैन राइट देयर आर इनफाइनाइट लाइन passing through a point, through a point, through a point. Okay, we will do one more question of this type. अगर हम इसको पॉइंट को चेंज कर देते हैं, पॉइंट है मेरे पास 3 और 15, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन गिवन पॉइंट 3 और 15, 3 और 15। Now let x plus y equal to k passing through
पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट में से पास करें। अब ये लाइन उस पॉइंट में से पास कर रही है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। x3 y15 इक्वल टू k, 18 इक्वल टू k, तो x प्लस y दैट इज इक्वल टू 18। बच्चे और भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू kx, लेट y इक्वल टू kx, पुट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 15, 15 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 15 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो योर इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू k की वैल्यू पुट करो आप यहां से, k की वैल्यू k 5 आ गया, 5x। आप चेक कर सकते हो y को अगर 15 पुट करते हो x को 3 तो LHS इक्वल टू RHS मीन्स दिस पॉइंट सेटिस्फाई दैट LHS इक्वल टू RHS। ओके, अब अगर इसी पॉइंट को आप ग्राफ में प्लॉट करें और चेक करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 और 14 2 और 14 आपके पास एक ही सिंगल पॉइंट आ गया। इस सिंगल पॉइंट से आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी पासिंग। थैंक्स स्टूडेंट।